while we are waiting for a few more nurses to join in, I would request everybody could just drop your name and qualifications and where you are joining from. Like if you're joining from Delhi, you're joining from Jaipur, your qualification is GNM. Priyanka is a GNM. Okay. What about others? Okay. So Kaushiki is a GNM nurse. Sadhana is also a GNM. Okay. So Sadhana is in Delhi, Amrita Hospital. Great. Others also, if you could just drop in your details, I'll get an idea about your profiles. And then, of course, we can answer your questions much better. Afternoon, everyone. My name is Gaurav Sharma, and I am GNM diploma holder. I am from Punjab. Thank you, Gaurav, for the details, but would really appreciate if you can just drop it in the chat box because otherwise I will definitely forget. And we can always keep, referring to the chat box. All right. So we start with the session now. Quickly introduce myself. I am Paramita Mitra, currently working as a senior manager at Jet Set Jobs. And I'm sure nurses, everybody here who is in the session know about Jet Set Jobs. We are based in Delhi and we help nurses who are planning to go abroad become eligible for those opportunities, right? So we provide you with language training, we provide you with placement support, documentation, and every compliance and ensure that you are perfectly eligible for the opportunity abroad. While we were in touch with so many nurses like you, we realized that people who are interested to start their journey, they have lots of doubts. है ना? होता है कि हमारे पास हम करना तो चाहते हैं बट हमारे मन में काफी सारे सवाल होते हैं, राइट? डाउट्स होते हैं, थोड़ा डर लगता है कि क्या पता हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जेन्युइन है फेक है, मार्केट में इतने सारे स्कैम्स है. तो वी आर ऑलवेज अ लिटिल skeptical, a little scared and feeling anxious even after we enroll into the program, and we understand that. So what we thought that, the best way to answer all of that is to bring forward somebody who has been in your shoes, right? जो आपके position को समझते हैं, आपके सारे fears को समझते हैं, right? And has been part of this journey, right? For a long time, and she is the best person to answer all of these queries for you. So before I introduce her, would request everybody, if it's possible, please do turn on your camera so that we can see you. Conversations become much easier. And of course, later, whenever you want to, start your journey with us, we will definitely remember your faces, right? So would be very grateful अगर आप लोग cameras जो है on रख सकते हो so that we can see. All right. Thank you. I can see few are कि कुछ लोग अपनी ड्यूटीज पे हैं. It's okay, I understand. अगर बीच में आपको कैमरा ऑफ करना पड़े, it's fine. But जब तक possible है, वो रिक्वेस्ट कि अगर आप कैमरास ऑन रख सको, right? You can also see my face, and when you come and become part of the program, I will definitely remember you. So here we have in the session, we have Sirjana Rana with us. She is part of the first batch of Jet Set Jobs. Currently, she is in her B2 level German. That means just a few more weeks of language training and she will be completing her language training journey. And already B1 exam also she has given, and she is coming to our Delhi center. She is doing her offline classes, and she is a nurse with experience as well in Delhi. So we have Sirjana here on the call. Sirjana, thank you for taking our time, to interact with the nurses who are interested to start their process. It's my pleasure, ma'am. Yes. Sirjana, would you like to introduce yourself to everybody on the call? Yeah, sure. Hello, everyone. Myself, Sirjana. I'm from Nepal. I have done my nursing from Delhi only. So, Holy Family Hospital, you have heard about that. If anyone from Delhi, from there only I did my nursing. Then afterwards, I joined that hospital only itself in ICU. So, I worked there in more than 4 years in ICU. So, afterwards, then I started with Jet Set job for the German language. So, if anybody has any doubt, you can ask me all the doubts. So I think how we'll do this session is whatever doubts are there, you start putting in the chat box. So we will remember all the questions, and in case ऐसा हो सकता है जो आप पूछना चाह रहे हो किसी और का भी वो question हो.
So we will, and that will help us ensure that we are not, repeating them. And of course, it will help us in keeping records as well. So I think while they are putting their questions in the chat box, Sejana, when you wanted to start your journey, I remember what were the thoughts that, going on in your head, and what made you start thinking about Germany, and why did you take the decision to start the process? Okay, so everybody is comfortable in English or Hindi? Both? Okay. So एक्चुअली क्या था, पहले मुझे हमेशा से ये था कि हाँ नर्सिंग करके फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ पे सेटल होना है या फिर वहाँ पे जाके काम करना है, बिकॉज दे हैव न्यू टेक्नोलॉजीज, एवरीथिंग इज देयर इन फॉरेन कंट्रीज. फर्स्टली आई स्टार्टेड लाइक आई हैव स्टार्टेड फॉर द OET, so I thought I'll do the OET and all. But at that time in 23 or 24 around that time, that UK has already said that they are not taking any more nurses from India or anywhere, because they have already full the vacancies for the nurses in UK. So afterwards then I was searching like what should I do next. I was very confused and going through all the things, and at that time only I got to know about the jet set job. Then I got to know Parumta ma'am. Then I have had talk with her like 3 weeks or 2 weeks before meeting to her and going to her, because I had a doubt like if it is real or fake, because in Instagram they are having so many fake IDs also, and they are taking lots of money also, so that is also one concern. So uske baad then Parumta ma'am told me that ki you come and visit me for once, then you can decide that if you want to enroll in this course or not. Then afterwards then I decided to visit her. Then Parumta ma'am told me all the things, from the start till the end, like how my journey would look like in a year, because everybody thought that German language is very difficult, it's very tough to learn. सो एवरीबडी हैज़ दैट डाउट, क्योंकि ऐसे सुनने में आता है ना, सब ऐसे बोलते हैं कि जर्मन बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, बहुत सारा होता है ग्रामर का, इसका उसका. देन कमिंग फ्रॉम नेपाल ऑल्सो, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न अ जर्मन लैंग्वेज, So afterwards then Parumta ma'am counseled me regarding all the things, how should I start my journey with. After so many doubts, I took almost 1 hour of Parumita ma'am initial on the first day when I went to meet her. So after 1 hour of counseling and discussion only I decided to join the classes. Yeah, initially starting में तो मैंने online classes लिया था, because I was working at that time. So I was working in Holy Family Hospital ICU only. So if anyone is here from the ICU department, they must know how hectic and how busy is ICU. So yeah, exactly, so they can understand how difficult it is to do the German language as well as the working in ICU. So it was very hectic at that time, but I was taking online classes only. After 1 or 2 months of online classes, that I thought that कि इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा जर्मन के लिए. अगर मुझे ये सीखना है, अगर मुझे जानना है और मुझे पास होना है, B2 तक जाना है और जर्मनी पहुंचना है, तो मुझे अपना टाइम भी देना पड़ेगा इसको, है ना, लैंग्वेज को. So that after that only that I decided that I will join the offline classes. And you won't believe कि मतलब ऑफलाइन क्लास जाने के बाद it was drastic change in my language, German language सीखने का, because in class lots of बैचमेट्स आर देयर एंड इंटरेक्शन टीचर्स के साथ 1-on-1 हो रहा है, दूसरे बैचमेट्स भी है. देन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क देन एंड देयर इटसेल्फ, सो टीचर विल क्लियर योर डाउट, सो यू कैन आस्क as many question as you want. Because in online class क्या होता है, कभी कभी क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ क्लास लेते हैं, तो sometimes we hesitate, one of or some of you must be little introvert also, that they don't want to ask the question and raise question, that is also one problem. After online class it was very drastic change for me. Then initially it was very hard. I thought it is very hard. I had an interview with the German employer, so we had the interview in English, okay, initially. So Mr. Christian was there. So what he said, that initially when you start to learn German so your motivation will be like this, very high motivation. You'll do it in 3 months, 4 months, like that. So when you start to learn the language, and then only you realize that you have to give some time to that, to learn the language.
and you have to use the language also to get used to it. तो आपको जितना आप यूज करोगे उसको उतना आपको आता जाएगा, जितना इंटरेक्ट करोगे एक दूसरे के साथ उतना इजी होता जाएगा, क्योंकि वो चीजें सुन सुन के आपको वो होता रहेगा ना कि आप बार बार वही चीजें सुन रहे हो, तो वो चीजें से क्या होगा, जिसको नहीं भी पता है ना वो इतना सुनने के बाद तो याद हो ही जाएगा फिर। Absolutely. I think लैंग्वेज जो हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, नॉट ओनली जर्मन, राइट, आज हम हिंदी सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, जब तक हम लैंग्वेज को डेली यूज नहीं करते तब तक तो आपकी फ्लुएंसी नहीं आ सकती। बाकी आई थिंक सजना जब आपने स्टार्ट करा था, लाइक मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स, आपको जर्मन का आई थिंक कुछ भी नहीं आइडिया था कि क्या वर्ब्स होते हैं, क्या है ना, क्या अल्फाबेट हैं। सो वी हैव फ्यू मोर एडिशनल अल्फाबेट्स इन जर्मन। अगर आप बता सको ताकि सबको जो है थोड़ा बहुत आइडिया आए कि जब इनिशियली जर्मन लैंग्वेज हमने स्टार्ट किया एट जेट सेट, हाउ वाज दैट, what were the first few steps that were taken, and जहाँ पे आपको भी धीरे धीरे फिर कॉन्फिडेंस आने लगा कि ठीक है दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड फिर आपको आइडिया आने लगा कि ठीक है ऐसे हम सीखेंगे, और कितने बेसिक लेवल से किया गया है, थोड़ा बहुत अगर आप वो भी बता सकते हैं। तो इनिशियली जो हमारा फर्स्ट क्लास था उसमें तो इंट्रोडक्शन वगैरह, एक दूसरे का सबका इंट्रोडक्शन वगैरह एंड ऑल, देन आफ्टरवर्ड्स देन वी स्टार्टेड विद द अल्फाबेट इज 26 only ABCD, but they have 4 vowels, like vowel sounds, they also have 4 vowel sounds. Okay, so they called it A umlaut, U umlaut, O umlaut. Okay, so I know it must be a little confusing when you start the classes, then only you will remember me at that time. So yeah, she was talking about that like this. When you pronounce it na, so it's very difficult. In English we say A na, A B C D, but in Germany we say A B C D. So pronunciation itself is very different. In the alphabet we had a game also, ma'am used to teach us with the game also, like she will randomly ask what this sound like, what that sound like. So it was very interesting as well as interacting. So ABCD was quite easy for me personally. Then afterwards then came the greeting part. It was like after the learning the greeting part, I thought like I have passed the Germany language. It was very easy, and in class now we started to greet each other, and we thought, oh, we are fluent in German like this. So we had a very much our motivation level increased like that adrenaline shot, like we have taken the adrenaline shot. So yeah, that was very interesting. So after greeting and all, then we started with the introduction part and all. But the things where we got confused is there is a in German there is a 4 gender. In Hindi we say either लड़का is करता है, लड़की is करती है, and all like that. But now only I am also having the problem with this करता है करती है. Okay, but at least I know some that लड़की is करती है, लड़का is करता है. Okay, but in German there is 4 gender: masculine, feminine, न्यूट्रल और प्लूरल तो चलो यहाँ पे भी होता है, हिंदी में भी. But in German you will get confused in der, die, das. Okay, der means muscular. Okay, there's 4 cases in German. Okay, different cases. In accusative masculine will be der. Okay, nominative, sorry. In accusative masculine will be then in dative dem, then if genitive then des. So it's very confusing. So firstly you have to know ki matlab what is called that, and what is like in phone na handy, this is called handy in German. Okay, we call it phone, but हम इसमें कोई जेंडर हम ऐसे बता नहीं सकते ना क्या जेंडर है करके. बट इन जर्मन दिस इज न्यूट्रल. ओके, दिस इज दास हैंडी. ओके, सो लाइक दैट यू हैव वाटर बॉटल इज feminine. Okay, the flasher. And yeah, it's very it's very confusing when you do we have to practice a lot. You will get confused in there the das only. Okay, so initially it was quite interesting also, because you have classmate also and all, then you can make the fun of that also. German language you can make the fun also. When you make the fun also that time also you can learn the language. And if we talk about the masculine one, if we talk the masculine, pen is there na, pen, what we use pen, that is male. Okay, that is masculine. So their pen. I think that's very interesting. I काफी लोग शायद ये पहली बार सुन रहे होंगे, राइट, अबाउट द 4 genders
in German language and it is very fascinating जब आप नया कुछ सीखते हो. It's important कि आप एक right attitude लेके जो है अपना journey start कीजिए and that is the only thing that will keep you motivated is when you have the clarity in your head and you start with the right attitude actually. So as she mentioned that you start from very basic. अगर आपको लगता है कि ओ मुझे तो जर्मन लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता है, मैंने तो कभी कोई नई लैंग्वेज शायद सीखी ही नहीं है, शायद सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही यूज करते हैं, है ना, तो इट डज नॉट मैटर. ऑल्सो अनदर मिथ दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव इज माय इंग्लिश हैज टू बी गुड फॉर जर्मन. Sejana, how true is that? It is not at all true. Whenever we learn the German, now we have to translate it in a Hindi, because in English it means different thing and in German it means different thing. So if you don't know English, don't worry. In my batch also there are few people who don't know English but they are very good at German. Okay, so there shouldn't be any doubt that you don't know English, how will I learn the another language? There is no relation of English and German. So I think that's true, that English से कोई relation नहीं है. This is a completely new language that you are learning. और अगर आप जो है, जैसे मैंने कहा, अगर आप क्लासेस रेगुलरली अटेंड करोगे, है ना, टीचर के होमवर्क, वर्कशीट्स वगैरह आप सब कुछ करोगे, then definitely it is possible for you, no problem. हो सकता है कुछ लोग जल्दी कर ले, हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, but if there is nothing impossible, you will definitely clear it. That's for sure. सजना, जब आपका जो जर्नी रहा है अभी तक, आपके बहुत सारे इंटरेक्शंस हुए हैं विद योर एम्प्लॉयर्स, ठीक है, आपके एम्प्लॉयर्स जो खुद जिनके पास आप ऑब्वियसली जिन्होंने आपको ऑफर लेटर इशू किया है, अपार्ट फ्रॉम दैट अदर एम्प्लॉयर्स ऑल्सो जो हमारे सेक्टर में आते हैं, है ना, तो ये जो इंटरेक्शंस होता है जब आप किसी जर्मन नेशनल के साथ बात कर रहे हो, हाउ informative is that and how eye-opening is that? Would you like to share that experience also? Yeah, sure. So in such a job we have so many employers, so we had so many interaction with the employers. Okay, we had online as well as the offline interaction. Like if you have any doubt, in initial time we had lots of doubt, like you guys also having doubt, I know for sure. Okay, we also had the doubt. So जब भी वो center पे आते हैं employees वगैरह, they are ready to answer any doubt and they are very helpful also. Like if you have any doubt, anything, they will clear every doubt of yours. I'm from Destination Germany, so that they are my employers. Okay, apart from the Destination Germany, we had lots of interaction online as well as the offline. So when they came to our institute they explain us like how's the life in the Germany is there, what is the new thing in the Germany for the nurses, what is the difference healthcare system in India and Germany is, like how we can advance our career over there. Like any of you want to study also, they offer this further study also, they offer something for the nurses. And like apart from that, whenever we move to a new city, we are very scared, और that कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, फैमिली मेंबर नहीं है, हाउ विल वी सेटल देयर, कैसा होगा, क्या होगा, तो जो भी होगा वो सारा एक्सप्लेन करते हैं. लाइक दे वोंट लीव अस अलोन ओवर देयर कि एयरपोर्ट में गया और वहीं पे हॉस्पिटल में ले जाके छोड़ दे, कुछ नहीं है. दे सेटल अस, जब वो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ कि हम लोग सेटल हो गए हैं, हम लोग यूज टू हो गए हैं कि मतलब हम कैसे रहना है वहाँ पे, कैसे करना है, क्या है, तो वो सब कुछ में हेल्प करेंगे. फिर वो जब भी इंडिया आते हैं ना, तो वो कोशिश करते हैं कि सबसे इंटरेक्ट करे, कि का जो भी डाउट है वो क्लियर करे, कि किसी बच्चे के पास ये डाउट ना रहे ना कि कल को कि हमारा एम्प्लॉयर कोई डाउट क्लियर नहीं कर रहा है, कुछ हो ऐसा ना हो ना. इसलिए तो मोस्टली जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही चाहिए होता है कि मतलब क्यों हम जर्मन सीख रहे हैं और हमें क्यों जाना है जर्मनी, ये हमें पता होना चाहिए. पहली बात, क्यों जाना चाहते हैं हम जर्मनी, है ना, ये सब तो पता ही होना चाहिए. बिकॉज इफ दे आर टेकिंग अस, दे ऑल्सो वांट टू नो ना कि मतलब हम क्यों जाना चाहते हैं. ओके, देन ऑल आफ्टर दैट ऑल्सो लाइक वी हैव सो मेनी एम्प्लॉयर्स हु गाइड अस, लाइक कि मतलब हमें कैसे कैसे क्या करना चाहिए. कुछ एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो हमें स्टडी के लिए भी मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, कि मतलब जर्मनी में जो भी होता है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक्सेंट का डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो सीखते हैं उसमें और जो वहाँ के नेटिव स्पीकर जो है वो बोलते हैं उसमें एक्सेंट में थोड़ा डिफरेंस वगैरह आता है, तो उसके लिए भी गाइड करते हैं. और
कुछ वो एम्प्लॉयज़ जो है वो हमारी क्लासेस भी लेते हैं कभी, जैसे कि हमें ऐसा होता है ना कि अभी हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो लैंग्वेज तो मैम सिखा देंगे, ग्रामर वगैरह, स्पीकिंग जो भी है, लेकिन हमारा जो मेडिकल से रिलेटेड है वो भी तो हमें पढ़ना है ना, क्योंकि हमें तो नर्सिंग के लिए जाना है, काम तो हमें हॉस्पिटल में करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी क्लासेस वगैरह देते हैं वो लोग, कि मतलब हमें ये ना रहे ना कि मतलब हम सीधा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं हॉस्पिटल के लिए और हमें कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या बोलना है, कैसे करना है करके, तो उसके लिए भी वो बहुत हेल्प करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें डाउट रहता है कि मतलब ये जेन्युइन है या फिर क्या फेक है, क्या है करके, तो वो भी बच्चे के पास वो डाउट भी ना रहे करके एम्प्लॉय स्पेशली आते हैं हमसे मिलने के लिए कि हाँ हम रियल है करके, कि हम फेक नहीं है करके। ट्रू ट्रू। आई थिंक ये जो ड्यूरेशन होता है आपके लैंग्वेज ट्रेनिंग का, इसमें काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो आपके सिलेबस में नहीं रहता है। जो जैसे अगर आप किसी भी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ते हो, या फिर आप कोई भी मार्केट से कोई भी किताब लेते हो, वहां पे जेनेरिक सा सिलेबस होता है, जो आज कोई लेट्स से कोई कैंडिडेट जो वहां पे पढ़ने जा रहा है वो भी वही सिलेबस पढ़ता है, कोई जॉब के लिए जा रहा है वो भी पढ़ते हैं, नर्स भी पढ़ रहे सेम सिलेबस, डॉक्टर भी सेम, इंजीनियर भी सेम, आज इलेक्ट्रिशियन भी सेम। बट ऑफ कोर्स जब हम वहां पे जाते हैं, हाउ वी आर यूजिंग द लैंग्वेज, ये बहुत अलग होगा। इसमें आई थिंक काफी सारी चीजें हैं जो हमारे कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, एक्स्ट्रा सिलेबस होता है। इट्स अ लॉट ऑफ वर्क राइट नाउ, बट इवेंचुअली दिस रियली पेज ऑफ। तो सृजना, थोड़ा आप उस पर भी बताओ कि जैसे एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें आप करते हो जो कि आपके फ्यूचर में जब आप वहां पे जॉब करोगे, जो आपके प्रैक्टिकल काम पे आएगा। ओके, तो मैम जो भी हमारा ग्रामर्स वगैरह होता है ना, क्योंकि हमें तो मेन क्या चाहिए, हमें ग्रामर चाहिए ना, तभी तो हम बोल पाएंगे या इंटरेक्ट कर पाएंगे, या कोई कुछ बोल रहा है तो हम समझ पाएंगे, है ना। तो हमें क्या, एक तो वोकैबुलरी आनी चाहिए, ग्रामर आने चाहिए, है ना, तभी तो हमें समझ आएगा कि हाँ कि क्या बोल रहे, उधर से क्या आ रहा है, ये सब ठीक है, ये सब होता है। उसके अलावा जो हमारे पास जैसे बुक्स जो मिलती है ना, तो हमें स्टैंडर्ड बुक्स मिलती ही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी जो प्रूफिंग ट्रेनिंग वगैरह होती है, जो वहाँ पे जर्मनी में वो होते हैं, पब्लिश होते हैं, वो सारे जो बुक्स है उसके हमें मॉडल टेस्ट पेपर्स वगैरह होते हैं वो मिलते हैं, हमें वर्कशीट वगैरह मिलती है एक्स्ट्रा, ताकि क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि मतलब वैसे तो जर्मन की मोस्टली सारी बुक्स जर्मन में ही वो होते हैं, पब्लिश होते हैं, वहीं से मोस्टली होते हैं। कुछ कुछ बुक्स होते हैं जो स्पेसिफिक उसमें होते हैं, कंट्रीज में पब्लिश होते हैं, तो वो सारी बुक्स जो होते हैं वो उसके हमें मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह मिलता है, क्योंकि जो जर्मन्स है ना, उनको ना क्या चाहिए होता है, वो अपने इन्वायरमेंट को लेकर, अपने आईटी नॉलेज और टेक्निक्स को लेकर बहुत वो है, हेल्थ कॉन्शियस है वो, ठीक है, इन सब चीज को लेकर। तो वो मोस्टली बुक्स में वो जिस चीज के लिए कॉन्शियस है ना, जिस चीज को लेकर ज्यादा वो है उसके लिए, तो वो उसी चीज को बुक्स में पब्लिश करते हैं, ताकि हम उसके बारे में पढ़ सकें, ताकि हमें पता हो कि हाँ जर्मन में कैसा होता है करके, क्या चलता है करके। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमें लेजन करना होता है, ह्योरन करना होता है। ह्योरन, लेजन मतलब रीडिंग करना है, ह्योरन मतलब लिसनिंग का टेस्ट होता है, श्राइबन मतलब ईमेल लिखना होता है, ठीक है, और उसके अलावा हमें स्पीकिंग करना होता है ना, ये तो पता है सबको। 4 मॉड्यूल है हमें, है ना, 4 मॉड्यूल है। तो चारों मॉड्यूल में क्या होता है ना कि हम लोग जो भी स्पीकिंग वगैरह करते हैं ना, ऐसा हो सकता है कि हम उसी चीज के लिए, किसी चीज को बोलने के लिए हम यहाँ पे कुछ और वर्ब यूज कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कुछ और वर्ब यूज कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना। इसलिए ताकि ये गैप ना आए, इसलिए फिर हम बाहर जो पब्लिश होती है बुक्स, उसके भी हम मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हम एब्सोल्युटली, आई थिंक वो भी बहुत जरूरी है। जो ये आपका लैंग्वेज ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है, उस पे आप जितनी मेहनत कर रहे हो, ये तो फ्यूचर में आपको कम मेहनत से हो जाएगा, लाइफ विल बिकम मच इजियर। सो आई थिंक राधा ने एक क्वेश्चन ड्रॉप किया है, उस पहले मिल्खा आपने हैंड रेज किया था, बट वुड रिक्वेस्ट कि आप अगर आप अपनी क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दो, आप इंग्लिश में हिंदी में दोनों लैंग्वेजेस में लिख सकते हो, कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे। तब तक हम राधा ने जो क्वेश्चन पूछा है वो एक बार आंसर करते हैं। कुड यू प्लीज इलैबोरेट व्हाट इज द होल प्रोसेस including the time duration to reach Germany after completing the course? So, Srijana, do you want to answer this? Yeah, sure, ma'am. So after you complete your B2, so okay, after 1 month only we get the result. Like the exam in December, so December 15, so we'll get the result in January 15 only. After 1 month only we get the result. Okay, if you guys have completed your documentation with the Jet Set job, you have already submitted your document. Okay, so it will take only hardly 1.5 months
hardly. If your documents are complete, requirement is you have to pass the B2. Okay, so after passing the B2, they start working for the visa and all. So they start working with your visas and everything. That's why they ask for the documentation earlier only. They want your original documents. After passing the B2, we won't have to waste time in that thing that we have to run for the documents, we don't have this thing or that thing. तो इसलिए हमें अपना documentation पूरा करना है. Okay, so these are 3 things. If you completed all the 3 things, then ma'am will work on that. They will take hardly 1.5 months only. आई थिंक जो आपका लैंग्वेज ड्यूरेशन का पीरियड है, एज सृजना मेंशन वेरी करेक्टली, उसी दौरान जो है हम अपना होमवर्क करके रखेंगे. हमें पता है कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, हमें पता है कि एम्प्लॉयर को कौन से जो है हमारे सर्टिफिकेट्स चाहिए. क्योंकि क्या होता है, जैसे आज इंडिया में आप हो, लेट्स मी टेक द एग्जांपल ऑफ अ बर्थ सर्टिफिकेट. कुछ के बर्थ सर्टिफिकेट्स इंग्लिश में होंगे, कुछ के हिंदी में होंगे, कुछ के रीजनल लैंग्वेजेस में होंगे. ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप हमें सबमिट करते हो, दे ऑल्सो गेट ट्रांसलेटेड. तो हमें इनको पहले इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है, फिर इंग्लिश से जर्मन में ट्रांसलेट करना होता है. तो वो सारी चीजें जो है हम रेडी रखेंगे व्हेन यू रीच योर B1. अब आपने B1 कर दिया और फिर B2 कर लिया, देन आपका एक और राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा विद द हॉस्पिटल जिनके पेरोल पे आप जा रहे हो. करेक्ट. तो फिर वो इंटरव्यू होने के बाद अब आपके डॉक्यूमेंट्स हमने पहले से रेडी रखे, आप इंटरव्यू क्लियर हो गए, वी सबमिटेड टू द एम्प्लॉयर एंड देन वी अप्लाई फॉर द वीजा. सो बिकॉज हमने सारा एज पर कंप्लायंस ready रखा था. After the interview, once you are selected and we get the final, go ahead from the employer, we directly work on the contracts and of course your visas. तो उसमें फिर you don't have to wait for too long. एक standard timeline राधा अगर आप पूछो तो आप ऐसा मान के रखो कि within a year you should be able to fly, provided you are regular with your classes and you do not fail in any level. क्योंकि देखो, अगर आप किसी लेवल पे फेल हो रहे हो तो वी कैन नॉट जस्ट जंप, है ना. हमें तो वो कंप्लीट करके ही जाना है, क्योंकि आप एक कंप्लीट करोगे फिर सेकंड कंप्लीट करोगे. समटाइम्स आपकी कोई पर्सनल इमरजेंसी हो सकती है जिसकी वजह से शायद आपको 15 दिन की छुट्टी चाहिए या 1 महीने की छुट्टी चाहिए. कुछ और रीजंस होते हैं. कभी कभी होते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स सारे अवेलेबल नहीं होते, तो हम अप्लाई करते हैं, आने में टाइम लगता है. सो दोज थिंग्स, तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स. बट लेट्स से एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथली, अ स्टैंडर्ड टाइमलाइन इज 1 year. 1 year में हो जाएगा. नाउ मिल्खा, यू हैव आस्क्ड कि आपकी टीम मेरा पूरा लास्ट तक सपोर्ट करेगी. द आंसर इज यस, एंड द प्रूफ इज सृजना, एंड दैट इज द रीजन कि हमने ये पूरा जो है आज बडी कनेक्ट रखा है. दैट ऑफ कोर्स यू आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सिर्फ एंड तक तो आई थिंक एंड अगर आपको लग रहा है कि फ्लाइंग इज नॉट द एंड, माय डियर. व्हेन यू लैंड, यू जॉइन, आप वहां पे एज अ नर्स रजिस्टर होते हो. वी आर ऑलवेज जस्ट 1 call away, राइट. वहां पे आप जब लैंड भी करते हो ना, आपके एम्प्लॉयर्स, जैसे शी मेंशन्ड, सो व्हेन सृजना लैंड्स, क्रिस्टियन विल बी एट द एयरपोर्ट to pick her, and she has already met these people thrice. 3 बार तो अपने एम्प्लॉयर से ही मिल चुकी है, बाकी एम्प्लॉयर से भी मिल चुकी है. Exactly. है ना. तो वो आपको उतना सपोर्ट कर, वहां पे भी जैसे आपको आपके घर ढूंढने से लेके आपके वहां पे जॉब ज्वाइनिंग तक, है ना, आपके बैंक अकाउंट्स ओपन करना, एवरीथिंग, आपकी फर्स्ट शॉपिंग तक में वो आपको सपोर्ट कर. एंड वी आर हियर. जेट सेट इज पार्ट ऑफ सचदेवा कॉलेजेस, व्हिच इज अ लेगेसी ब्रांड, 80 years old company, right? 3 generations. So we stand on what we are promising. We will 100% support you, but at the same time, you also follow the instructions and the guidance that we are giving. A lot of people, they start the process, क्या होता है कि कई बारी the motivation is not there या कुछ हो सकता है. हर बैच में 1 या 2 कैंडिडेट ऐसे होते हैं. I'm sure Sejana also has so many examples like that, जो कि इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करते, क्लासेस में नहीं आते, होमवर्क्स नहीं करते. उनके लिए ऑब्वियसली प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप एक ऐसी प्रोसेस में हो जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है. तो जो लोग आपको गाइड कर सकते हैं, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप
उनकी गाइडेंस सुनो। अगर आप जेन्युइन एफर्ट कर रहे हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप सारा गाइडेंस फॉलो कर रहे हो, then definitely you will be in Germany working as a very respected nurse and having a very happy life. That I can tell you. So I think that answers Milka's question. And do we send the original documents or the scanned copy? See, we don't need your original documents. आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखो, ठीक है, बट यस हम एक बार ही मंगाते हैं बिकॉज हमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो स्कैन कॉपीज है वो फोन स्कैन नहीं चलेगा, हमें मशीन स्कैन चाहिए होते हैं और वी नीड टू वेरीफाई, राइट। एंड ऑल्सो आपके डॉक्यूमेंट्स एक बार ही जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को टू गेट टू वेरीफाई, राइट। तो वो उससे हम अपोस्टल प्रोसेस बोलते हैं। तो फॉर दैट वी विल नीड, बट द डॉक्यूमेंट्स रिमेन विथ यू एंड आई एम टेलिंग यू डू नॉट गिव योर ओरिजिनल documents to anybody. A lot of candidates हम ऐसे मिलते हैं जो किसी और एजेंसीज में they are working and उन्होंने अपने original documents submit कर दिए and now they are stuck, they are not able to come out of it. Original documents always remain with you. Yes, you will have to show it to us because you need to know that you know it's there, of course. And but yes, they stay with you. That तो उसमें कोई stress नहीं है आपका. So thank you Milka for the kind words. I will look forward to seeing you in the classes then because you said कि आपको अच्छी लगी है process. Yeah, me too. Yes, Srijana will also be there in the center. She's your senior. And of course, the center में you can reach out to. We have a very good environment जहाँ पे आपको बिल्कुल hesitate करने की जरूरत नहीं है. अगर मैं बताऊँ हमारे center में we have nurses जो कि बहुत सारे experienced nurses हैं who are in their 30s and 40s, and we also have candidates who have just 21, 22 जिन्होंने अभी BSc GNM, and it is beautiful how everybody is sitting and learning a new language and putting a effort and all working towards the same goal. So it's a very healthy environment and it's going to be very interesting for you. That is our promise to you. How much payment and salaries you are asking? So see, Germany में the salaries are standardized. Okay, so minimum what you get is 3,000 euros, which is close to 3 lakh rupees. I think euro is 100 to 100 अभी चल रहा है ना, तो उतना आपको मिलेगा. हाँ, अगर किसी का 5 साल के ऊपर है experience, starting salary will be a little higher, 3,700, 3,900. Somebody has more than 7 years experience can reach up to 4,000 euros. तो काफी हद तक जो है आपके experience पे depend करेगा, and also how fluent are you in German. दो चीज, experience, fluency, right? बट अभी के लिए, बिकॉज तभी मैंने आप सबसे पूछा था कि कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है. 3,000 इज बेयर मिनिमम. फ्रेशर्स को भी मिलेगा, तो आप 3,000 यूरो मान के चलो. ऑब्वियसली हम कम एक्सपेक्ट करते हैं, ज्यादा मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है, राइट? हम डिसअपॉइंट नहीं होंगे. 3,000 यूरो इज देयर मिनिमम. दैट इज द स्टैंडर्डाइज्ड बाय देयर गवर्नमेंट. इतना तो आपको डेफिनेटली मिलेगा. ऑल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू एड इज वी वर्क मोस्टली विद हॉस्पिटल्स, एंड आपको पता ही होगा कि एज अ नर्स अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली द हॉस्पिटल हैज अ बेटर पेइंग कैपेसिटी, राइट, कंपेयर टू अगर हम किसी केयर होम में जा रहे हैं या किसी उसमें जा रहे हैं. तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप एक अच्छे रेप्यूटेड हॉस्पिटल में वर्क करो ताकि आपकी सैलरीज भी अच्छी हो. देयर हॉस्पिटल्स थोड़े फास्ट पेस्ड होते हैं. पेशेंट्स आर कमिंग इन, गोइंग आउट, इट इज वेरी फास्ट. इट इज अ लिटिल हेक्टिक, बट yes, it pays also. Now Vijay has asked is, ma'am, the offline classes needed for B2 level or by online classes we can learn? This Srijana will answer. Yeah, surely. Who is Mr. Vijay? Can I see him first? Yes, Vijay, could you turn on your camera? Srijana, go ahead. No, it's Yeah, fine. sure. Okay, hello Vijay. So first of all, starting also I said that कि मैंने initially जो start किया था वो online class से ही किया था. Okay, अगर आपको online class लेना है तो आप ले सकते हो, no doubt. लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, बहुत ज़्यादा time देना पड़ेगा. If you want to learn something new, you have to give time to that. For nursing also, we have studied 4 years or 3 years. Okay, for that also, and we have done the offline only. Okay, so what is there in offline and online classes? I will tell you. You can
take the online classes, but I personally suggest you to take the offline classes if you can. But if you can't, then you can take the online class as well as, but you have to put your 200-300% in that. Okay, so initially क्या था, मैंने भी online class से start किया था कि मैं work ड्यूटी के साथ साथ क्लास भी ले लूंगी करके, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो नॉट सो श्योर अबाउट दिस, तो इसलिए मैंने भी ऑनलाइन ही स्टार्ट किया था. बट ऑनलाइन क्लासेस से ऑफलाइन क्लासेस जाने का जो जर्नी था ना, और उसके बाद जो उसमें मेरे लैंग्वेज में जो डिफरेंस आया है, दैट वाज ड्रास्टिक चेंज. क्योंकि जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती थी ना, मुझे बोलने में भी ना बहुत हेजिटेशन होता था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं है, बस ये है कि हाँ वीडियो खोल के कैमरा ऑन करके हम क्लासेस में बैठे हैं, तो हमें वो जो हेजिटेशन होती है ना, वो आती है. अभी भी देखो आप कैमरा ऑन नहीं कर रहे क्योंकि आपको ये हेजिटेशन है कि आप जानते नहीं हो करके. तो ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है ना, जब आप ऑफलाइन जाते ना कि वी नो कि हाँ हम जितने भी है सारे एक ही लेवल पे है करके, तो वो हेजिटेशन जो होता है ना, वो नहीं होता उस टाइम पे. फिर क्या होता है, जब हेजिटेशन चला जाता है ना, तो आप जैसा भी है ना, आप बोलना स्टार्ट करते हो. जब आप बोलना स्टार्ट करते हो ना, जैसे आप बोलोगे, लैंग्वेज जो है क्या है, बोल के ही आएगा ना, आप जितना बोलोगे उतना ही आपको आएगा. तो उसमें ये होता है कि अगर कुछ भी ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन पूछ नहीं पाते या डाउट्स है, तो उसके लिए भी क्वेश्चन पूछते नहीं है. लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है ना, मैम वहीं पे होती है, सामने है मैम, ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैम बोल भी देती है, क्वेश्चन भी पुटअप करती है, तो भी आंसर नहीं देते, तो मैम क्या कुछ नहीं कर सकती ना इसमें. तो लेकिन ऑफलाइन में क्या है, एक एक पे नजर होती है मैम की, और जब भी हम स्पीकिंग होती है, मैम के सामने स्पीकिंग कर रहे हैं, हम सामने बैठ के कर रहे हैं, मैम के सामने एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, ठीक है. वो जो इंटरेक्शन होता है ना, जो इंटरेक्टिव क्लास होता है, वो अलग ही होता है उसमें. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम क्लास में बैठे ना, जैसे मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, ओके, जर्मन में दे रही हूँ, अब दूसरा कोई बैठा है मेरे सामने, तो मैंने कुछ अगर नया वर्ड बोला ना, तो वो मुझे सुन के भी मुझे वो वर्ड, अच्छा इसने ये वर्ड यूज किया है, तो ये इसका मतलब ये होगा, ये है, इसलिए एक नया वर्ड सुनने को मिलेगा. एक जने से अगर एक नया वर्ड भी सुनने को मिलेगा, तो 20 बच्चे होंगे, तो 1 घंटे में आपको 20 न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे. ओके, या Absolutely. I think she's bang on it that online and offline में देखो यही फर्क है. हाँ. But one thing I want to add here, तो जो सबसे बड़ा differentiator है is the discipline that the candidate has. I'll take one example here. There is one candidate who has kept her camera on throughout, right? So I can see her throughout. Exactly. It is so nice because I know that she is so serious about it. बाकी लोग of course कुछ कोई ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, एंड काफी लोग जब कैमरा ऑन कर रहे थे तो मैंने देखा है कि आप शायद लेटे हुए थे या कहीं पे थे. ऑनलाइन क्लासेस में भी ये दिक्कत आती है कि कभी कई लोग ज्वाइन कर लेते हैं बट रास्ते में है ना, आप घर पे बैठे हो, पीछे से आपको किसी ने बुला दिया, कोई गेस्ट आ गए, कुछ आ गए, बिकॉज तब ट्रेनर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. Exactly. जो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि क्या जो आप 2 घंटे क्लास में बैठ रहे हो, क्या आप 100% फोकस्ड हो क्लास पे, आर यू गिविंग योर 100%, या क्या आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, क्या आपका फोन आपके सामने, ऐसे आपका फोन आपके सामने तो है बट क्या और भी लोग बैठे हैं, कैमरा ऑफ करके लोगों से बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, या लैपटॉप पे होता कोई और टैब में कुछ और कर रहे हो. ऑफलाइन में ये सब नहीं होता है, इसको ये अपना फोन भी नहीं निकाल सकते पॉकेट से, है ना. Exactly. Yeah. तो वो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है. Yeah. इफ यू आर समबडी हु इज डिसिप्लिन्ड एंड ट्रूली डेडिकेटेड कि मुझे तो करना ही है, मुझे नहीं पता, देन यू डू ऑनलाइन क्लासेस, नो प्रॉब्लम, वी विल गिव यू क्लासेस. एंड ऑनलाइन में कोई रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग दे दिया कुछ, आपको ट्रेनर्स, आजकल हमारे क्लासरूम में ट्रेनर्स लाइव बैठे होते एंड गिविंग द क्लासेस. एंड कभी जैसे ऑनलाइन से ऑफलाइन कोई शिफ्ट भी करेगा, उसे बहुत कोई डिफरेंस नहीं फील होगा, बिकॉज द ट्रेनर्स एफर्ट will always be the same. ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पे कम एफर्ट जाएगा, but you as a candidate will have to be very disciplined. The only thing that will make a difference, क्योंकि देखो अगर आपने मान लो A1 A2, एक तो आप एग्जाम से नहीं क्लियर कर पाओगे. सजना, how frequently do you give your exams? Very frequently. Very frequently. In A1 we had class tests. We have every week we have class tests. Every week ma'am take the class test, and in between ma'am takes the surprise test as well as.
So ma'am is very disciplined about that and very regular about that because अगर हम टेस्ट नहीं देंगे तो हमें फिर पता ही नहीं चलेगा ना कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। मैम को भी असेस करना है कि हाँ मैम ने जो भी करवाया वो हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, टेस्ट के थ्रू ही समझ आएगा ना कि हम कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो एवरी वीकली टेस्ट होता है जो हमारा चैप्टर से होता है। उसके अलावा जो हमारा मॉडल टेस्ट पेपर होता है, जो जैसा पेपर होता है ना वैसा टेस्ट पेपर होता है। जो हमारा फाइनल एग्जाम होता है ना, जो हम करते हैं एग्जाम, उससे पहले भी हम इतने मॉडल टेस्ट पेपर देते हैं, इतने मॉडल टेस्ट पेपर देते हैं ना कि हम बाद में ना ऐसे यूज हो जाए, अच्छा ये तो हमने किया है पहले, अच्छा ये तो किया है करके, बिकॉज वी प्रैक्टिस अ लॉट। मैम ना बहुत एफर्ट होता है मैम का इसमें, क्योंकि मैम सारे, अगर हमारे बैच में फॉर एग्जाम्पल हमारा बैच लेना है तो वी आर 20 पीपल, सो फॉर 20 पीपल टू टेक आउट दैट प्रिंट आउट फर्दर लेसन 5-6 पेज of each, so it's very hard work also for teacher also, so she is taking that much of effort, so हम भी अपने फिर सोचना है ना कि अगर टीचर इतना एफर्ट लगा रहे हैं तो हमें भी अपना 100% तो देना ही होगा ना। तो मॉडल टेस्ट पेपर तो हमें इतना करना होता है, इतना बहुत टेस्ट, क्योंकि हम लोग को जब हम एग्जाम में बैठे ना तो हम श्योर होना चाहिए कि हम कोई भी आएगा हम कर देंगे करके, कि हमें ये ना रहे ना दिमाग में कि हमने ये वाला कौन सा था किया नहीं, क्योंकि जितना भी मटेरियल्स होता है सारा मैम प्रोवाइड करवाती है और सारा प्रैक्टिस होता है साथ में बैठ के। हमारा क्लास में ह्योरन भी होता है, लेसन भी होता है, स्ट्राइबन भी होता है, उसके अलावा स्पीकिंग तो फ्रीक्वेंटली होता रहता है। जैसे कि मेरे जो टीचर्स है वो मिस शिल्पा मैम है, शिल्पा मैम अगर मेरी टीचर है तो मैम ऐसा करती है कि जो दूसरे फैकल्टी है ना उनके साथ भी हमारी स्पीकिंग करवाती है, ताकि हमें वो हेजिटेशन ना रहे कि वो दूसरा फैकल्टी है उसके सामने, अगर क्योंकि जब हम बाहर एग्जाम देने जाएंगे वो हमारे नॉन फैकल्टी तो नहीं होंगे, दूसरे होंगे, तो वो हेजिटेशन हटाने के लिए तो मैम ऐसे करवाती है कि हम दूसरे फैकल्टी के साथ एग्जाम दे देते हैं। ठीक है, आपस में भी स्टूडेंट्स जो होते हैं ना सबके साथ, जितने भी बच्चे हैं ना क्लास में सबके साथ एक एक सबके साथ स्पीकिंग करना होता है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही के साथ स्पीकिंग, मैं इसके साथ, ये मेरी फ्रेंड है मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ तो मैं सिर्फ इसी के साथ स्पीकिंग करूंगी, ऐसा नहीं है। सबके साथ करवाती है मैम और सबके सामने करवाती है, ताकि ये ना हो कि हाँ ग्रुप में करेंगे ना तो फिर कॉन्फिडेंस आता है ना धीरे धीरे करके, क्योंकि इनिशियली मैं खुद मैं भी इतनी एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट भी हूँ तो उसमें क्या होता है ना, जब मैं इनिशियली क्लास में गई थी ना A1 में तो ज्यादा कुछ होता नहीं स्पीकिंग, मतलब इतना लंबा बोलना नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आते आते बहुत ज्यादा बोलना होता है ना, तो इनिशियली तो बहुत कम बोलना होता है ना, उसमें भी मुझे बहुत हेजिटेशन होता था, क्योंकि ऐसा होता था ना कि अब मैं कुछ गलत बोल दिया तो वो क्या होगा, अगर उसको मेरे से ज्यादा आता है या उसने कुछ ऐसा पूछ दिया जो मुझे नहीं आता है, तो ऐसा हेजिटेशन होता है, क्योंकि सबका माय ब्रेन तो अलग अलग वर्क करता है ना, मैं कुछ और क्वेश्चन सोचूंगी, वो अनदर पर्सन इज थिंकिंग अनदर क्वेश्चन, तो ऐसे आपस में जब हम इंटरेक्शन करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ करते हैं ना, तब जाके हेजिटेशन भी दूर होता है। तो हम इतना प्रैक्टिस करते हैं ना, स्पीकिंग का भी करते हैं, राइटिंग के लिए, स्ट्राइबन के लिए भी मैम खुद बोर्ड में करवाती है पहले कि अगर इस टाइप का आएगा तो क्या लिखना है, अगर इस टाइप का आएगा तो कैसे करना है करके मैम पूरा रेडमेटेरियल वगैरह भी सब कुछ प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा ह्योरन तो हमारा इंस्टीट्यूट में पूरा है सिस्टम उसके लिए, तो लिसनिंग वगैरह सब कुछ मैम करवाती है वहीं पे क्लास में, करवा के एक एक से पूछेंगे कितना मार्क्स आया, कितना आया कैसे करके। ठीक है, ताकि मैम को पता चले कि कहाँ पे लैग कर रहे हैं हम, कहाँ पे कमी हो रही है, तो ताकि मैम फिर उसमें वर्क कर सके। फिर मैम हमें सजेस्ट भी करती है कि थोड़ा पॉडकास्ट वगैरह सुना करो, थोड़ा और ध्यान दो, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं होता ना हम लोग जब बैठते हैं ना, क्योंकि हम लोग ऐसे जनरेशन है ना थोड़ा सा कि कि ज्यादा देर तक एक ही जगह पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। बट फिर जो बात है ना टेस्ट की, तो बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, ताकि हमें भी पता चलना चाहिए कि हम कितना पढ़ रहे हैं, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम असेसमेंट नहीं करेंगे तो फिर हमें पता कैसे चलेगा, तो इसलिए हमारा असेसमेंट होता रहता है। I think language related, she has explained it beautifully. One last question that is remaining is Vijay ने पूछा है कि how many hours of extra work you can do in holidays. Vijay, is this regarding the job कि आप job पे कितने extra hours काम कर सकते हो? Is that what you're asking? Yeah, I think he's asking for the Germany how. Yeah, just want to make sure. See, अगर आप extra hours के लिए बोल रहे हो तो जैसे वहाँ पे weekly आपके base hours होते हैं 38 to 40 hours. Okay. And then that is 8 hours, 5 days a week, and you have your 2 days of off. Not necessarily Saturday and Sunday, because then hospital में कौन treat करेगा. आपको rotation पे definitely मिलेगा, 2 दिन आप week off है. If you want to do overtime, then you can do your average overtime for
last 4 weeks would be around 48 hours. तो यानी कि आप हर हफ्ते 8 घंटे तो आराम से कर सकते हो. कुछ हफ्ते आप ज्यादा कर लोगे, कुछ हफ्ते आप कम कर लोगे, ताकि एवरेज आपका उतना रहे. एंड ऑफ कोर्स अगर आप ओवर टाइम करते हो तो आपको एडिशनल पे मिलता है. कई ओवर टाइम पे से नाइट शिफ्ट पे या पब्लिक हॉलीडेज की जो पेमेंट्स होती है उस पे टैक्सेस भी नहीं होता है. तो आप whatever you make you can keep with you. So वो सारी फैसिलिटीज होती है. बट एक चीज ना मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूंगी कि जर्मनी में ना बर्नआउट एनकरेज नहीं करते. जैसे यहाँ पे कई सारे नर्सेज ऐसे होंगे जो 60 आवर्स 70 आवर्स 80 आवर्स की ड्यूटी कर रहे हो इंडिया में. वहां पे ना इसको इनकरेज नहीं करते बिकॉज दे नो कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है. योर बॉडी ऑल्सो नीड्स रेस्ट एंड लाइफ इज more not only about your job. There are so many aspects to life. And अगर आप किसी बेहतर कंट्री में जा रहे हो, किसी डेवलप्ड कंट्री में जा रहे हो, इतनी मेहनत करके जा रहे हो, तो आप ये डिजर्व करते हो कि आप लाइफ के हर एस्पेक्ट को एंजॉय करो. तो आप ये मत सोचो कि मुझे मैं 24 घंटे में 20 घंटे काम कर लूंगा. नहीं, दैट इज नॉट अ गोल हियर. द गोल इज कि आप जितने आवर्स बेसिक आवर्स से आप उसमें काम करो, उसी में आप अच्छी इनकम कीजिए. और लाइफ के और एस्पेक्ट्स जो होते हैं, जैसे किसी को फर्दर पढ़ाई करनी है, किसी को घूमने का शौक है, किसी को फैमिली को टाइम देना है, किसी को अपने बच्चे के लिए टाइम निकालना चाहते हैं, आप उन सारी चीजों में भी वक्त दे सको, जो कि यहाँ इंडिया में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए. राइट, दैट इज द मेन. यू वांट टू वर्क a few hours, do it, but slowly of course. What is more important is that you enjoy also. अब मैं इतनी मेहनत करके कुछ अचीव किया है तो आप उसे enjoy भी बिल्कुल कीजिए. So I think that wraps up the interaction for today. First of all, thank you for asking so many questions. We had all sorts of questions. That only shows how interested you all are for the process. Yes, Kabir? Good evening, ma'am. Sajana, do you want to answer that? Actually, I have some questions. So, Yes, ask. like regarding the process, like it's how many month process total? The entire process is within 1 year. Within 1 year. And ma'am, like you have tie up with the organization, or you are sending from the India, or you are tie with the German any organization, ma'am? We have tie-ups with them, of course. So, ma'am, that we have to pay regarding that, like any processing amount or any registration fees, or whether any like. There is a security deposit that you pay, okay? But that is refundable to you once you finish the process. Okay, ma'am. So as of now, ma'am, actually I have completed A2, A1 and A2. It's from Busu, like it's a UK-based company, but I don't think so it's acceptable in Germany. But still, let's do one thing, Kabir, because आपकी profile थोड़ी specific है. Let's take this, separately. What I'll do is we'll connect one-on-one with you and discuss, right? Because this session we want to concentrate on things which are relevant to everybody. If you have already started the German language, that's great. We no matter कि आप कौन से स्टेज पे हो, we can help you. कबीर, आप हमारी टीम में किसी के साथ टच में होंगे शायद? No, ma'am. Actually, just I applied through the career website only, so Okay. I don't think so. No I worries. think so. I know Vijay. That Vijay, I know him. I think he may be my classmates. I don't know. Vijay? Yeah, maybe he's from different college, but I know him. Okay, no worries. So what I'll do is, give me 1 second. I'll just drop my contact number here. जिनके पास नहीं है, I'm just dropping my contact here. इस नंबर पे आप जो है हमें WhatsApp कर सकते हो. This is our helpline number. And any conversation, because अगर आपके प्रोफाइल स्पेसिफिक है, let's take it offline, no problem. है ना? इस पे जो है, I'm just sharing the number here. इस नंबर पे आप टेक्स्ट कीजिए and you can call as well and we can take it. Okay? So we were just wrapping up the session. Thank you, Sirjana, for taking out time, and आपने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्ड में सबके क्वेश्चंस आंसर करे हैं. I am very proud of how you have handled the entire session. That really shows कि she also mentioned कि she used to feel that she is an introvert, but you saw how confidently she has handled the entire session, and that shows कि it's not just about your language skills. There are so many other skills also that you learn: public speaking, confidence. Yeah. Right? This is for everybody. जब आप journey के end पे खड़े होंगे and you look back, you'll see that not just language, you have learned so many life skills, I would say. Those who are part of the program, this is going to be very exciting for you. Those who are still thinking whether we should start or not, I think this is the last clarity that you needed. Now it's time for you to get in touch with your POC, your counselors, and in case अगर आप किसी के साथ टच में नहीं हो, जैसे कि कबीर, I have just dropped a number. Yeah, इस नंबर पे आप WhatsApp कर सकते हो and we will take your queries. Okay, perfect. Thank you everyone.